Good morning, dear students. I am Bharti Kathuria Saigal from the SD Vidya School, Ambala Kant. We are doing the chapter number 3, Human Reproduction. Today we are going to start with a new topic, gametogenesis. Now, what is gametogenesis? It is the process of formation of haploid gametes from the diploid germ cells, which in case of human males, the diploid germ cells are the spermatogonia, and in the case of females, these are the oogonia. Now, it takes place in the primary sex organs, that is testes in males and ovaries in females, which will lead to the formation of sperm, which is the male gamete, and ovum, which is the female gamete. The process of gametogenesis in males is called spermatogenesis, in which the spermatogonia, as I told you, the male diploid germ cell, right? They undergo the production of sperm or spermatozoa. Now, this process of spermatogenesis begins at puberty and goes on throughout the life. So, for the entire life of the male, they keep on producing sperm. In the female, the process of gametogenesis is called oogenesis, in which oogonia, which are the female germ cell, undergo division to form the ovum. It starts at embryonic stage, even in the fetal ovary, and it continues up to the age of 45 to 50, wherein the ovum stops production, the production of ovum stops, and we call it as menarche. Now, let's start with the details of these processes. First of all, we are going to talk about spermatogenesis. So, it is the process, as we talked, it is the process of formation of haploid male gamete. And where does it take place? It takes place in the seminiferous tubules of testes by the process that we call as spermatogenesis. The inner wall of the seminiferous tubule, it contains two types of cells. We've discussed this very clearly in the last videos, and these are called as the spermatogonia and Sertoli cell. Now, these spermatogonia are the mother cells which will divide into the sperm, and Sertoli cell will provide nourishment to the developing sperm. Now, spermatogenesis takes place in two stages as spermatidogenesis and spermiogenesis. So, let's talk about it. First of all, what is spermatidogenesis? It is the process of formation of spermatids. It involves three substages. सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्टार्ट कहाँ से होगा ऑब्वियसली जहां से हमने कहा मेल जर्म सेल से दैट इज द डिप्लॉयड मेल जर्म सेल व्हिच इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया जो कि प्रेजेंट है ऑलरेडी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर राइट सो उनसे आगे बन रहे हैं फर्दर यहाँ पर माइटोसिस से वो डिवाइड करके अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं और उन्हीं से आगे क्या बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे एंड दीज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे फिर डिवाइड क्या करेंगे दे विल गिव राइज टू द दीज हेप्लॉइड देन अगेन इनसे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके मैंने आपको बताया स्पर्मेटोसाइट्स बना रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं जो आगे दे विल अंडरगो मियोसिस 1 आपको पता है मियोसिस की दो स्टेजेस रहती हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 तो सबसे पहले रिडक्शनल डिवीजन होगा मियोसिस 1 जिसमें आपके पास दो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे व्हिच विल इमीडिएटली अंडरगो another division meiosis 2 and there will be formation of the spermatids and now these spermatids will mature into what we call as spermatozoa so यहाँ पर जो आप प्रोसेस देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस हमने यहाँ पर देखा कि स्पर्मेटोगोनिया ये माइटोटिक डिवीजन करके अपने और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना रहे हैं दिस इज व्हाट वी कॉल एज मल्टीप्लिकेशन फेज द नेक्स्ट फेज जिसमें कि हम बात कर रहे हैं ग्रो हो रहा है साइज बढ़ रहा है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाएगा जो एक स्पर्मेटोगोनियम था अभी तक दैट विल बी चेंजिंग नाउ इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं उससे नाउ दिस प्रोसेस दिस फेजेस इज कॉल्ड स्पर्मेटिडोजेनेसिस इसके बाद जो नेक्स्ट फेज हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी द मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या हो जाएगा जिसमें फर्स्ट मियोसिस होगी और उसमें टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स व्हिच विल हैव 23 क्रोमोसोम्स ईच ऐसे ही सेकेंड जब मियोसिस डिवीजन होगा तो वहां से आपके पास बन जाएंगे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स अब यहाँ पर जो बन रहे हैं दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स व्हिच आर कॉल्ड एज द स्पर्मेटिड्स अब ये स्पर्मेटिड्स जो है आगे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू स्पर्मेटोजोआ जोआ इज हियर जैसे हम एनिमल जू कहते हैं तो जोआ ये है बिकॉज इट इज नाउ एबल टू
मूव, मोटिलिटी आ गई है अब इनके अंदर बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लैजुलर टेल आ गया है इनके अंदर। सो स्पर्मियोजेनेसिस यहाँ पर हो जाएगा, स्पर्मेटिड्स जो है चेंज हो जाएंगे इनटू मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, इसमें स्पर्म का जो हेड है इसके बाद ये किसमें हो जाएगा, इट विल बी एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल एंड आफ्टर दिस दे विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मिएशन। So please do not confuse the different processes. Spermatogenesis complete process का नाम है। Spermiogenesis का मतलब है spermatid से spermatozoa बनना, spermatozoa को ही हम sperms भी कहते हैं, और इन्हीं स्पर्म के रिलीज को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहा जाता है स्पर्मिएशन। ओके, सो इन टर्म्स को ध्यान रखेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ये हार्मोनल कंट्रोल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज सच हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन, या एलएच का क्या रोल है, एफएसएच का क्या रोल है, इसके ऊपर 1 मार्क के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पूछे जाते हैं बहुत बार। सो अब हम यहाँ बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के हार्मोनल कंट्रोल की। तो सबसे पहला जो कंट्रोल है वो है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस आपको पता है कि मास्टर ऑफ द मास्टर है, वो आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले बन रहा है GnRH, जिसका मतलब है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और इंटीरियर पिट्यूटरी GnRH के स्टिमुलेशन के बाद प्रोड्यूस करेगा 2 तरह के गोनेडोट्रोपिन्स, एक है LH और दूसरा है FSH। अब यहाँ पर एक ट्रिक है याद रखने की कि कौन सा हार्मोन किस पर एक्ट कर रहा है। तो इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि LH को आपको याद रखना है L2H। L2H का मतलब क्या हुआ कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन will act on the Leydig cell. So L will act on L, that is luteinizing will act on Leydig cells. So Leydig cells के ऊपर ये act करेंगे, and then Leydig cells आगे formation करेंगे androgens का। आपको पता है सबसे important androgen टेस्टोस्टेरोन है, तो Leydig cells बनाते हैं androgens। वो कब बनाएंगे, जब उन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेशन मिलेगा with the help of LH, which is luteinizing hormone। अब यही एंड्रोजन्स आगे क्या करेंगे, दे विल स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम कहते हैं FSH। इसको भी याद रखने का वही तरीका है, FS2H। FS2H का मतलब क्या हुआ, FS2H का मतलब हुआ कि S जो है मतलब जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है वो किस पर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल पर एक्ट करेगा। तो इसको याद रखने की ये बहुत इजी ट्रिक है। सर्टोली सेल आगे क्या करेंगे, जब उनके ऊपर FSH एक्ट करेगा, सो दे विल बी रिलीजिंग सम फैक्टर्स जो किस चीज के लिए चाहिए, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए चाहिए। रिमेंबर स्पर्मियोजेनेसिस अभी हमने डिस्कस किया, स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस। सो स्पर्मियोजेनेसिस कहां से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से मैच्योरेशन हो रहा है स्पर्म का। सो यहाँ देखिए जो स्पर्मेटेड न्यूक्लियस है, यहाँ पर इसके आसपास क्या है, देयर इज द एक्रोसोमल वेसिकल का धीरे धीरे यहाँ पर एक फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और फिर उसके साथ ही यहाँ पर जो है गोल्जी अपैरेटस यहाँ पर बीच में, जिसमें पैकेजिंग हो रही है शुगर्स वगैरह की, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीजें यहाँ पर कंपाउंड्स का बनना स्टार्ट हो रहा है। सेंट्रियोल यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, और इसके बाद यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ऑफ द फ्लैजिलम। फ्लैजिलम यहाँ अपीयर होता है जो कि आगे टेल का काम करेगा, विच विल प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म। अब इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो स्पर्म के अंदर उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म इज मोटाइल, स्पर्म इजीली मूव कर सकता है बिकॉज उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब धीरे धीरे यहाँ जो ये बाहर वाला पोर्शन है, जो ये राउंड स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा स्पर्मेटोगोनिया का, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दिस विल बी चेंजिंग नाउ इनटू स्पर्मेटिड्स जो है वो चेंज हो जाएंगे इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये जो स्पर्मेटोजोआ यहाँ पर बन रहे हैं, धीरे धीरे इनके अंदर क्या हो रहा है, एक हेड ऊपर डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम कहेंगे एक्रोजोम। और ये एक्रोजोम वो पार्ट है जहां पर की बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि आगे ओवम की मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। अब देखिए मैच्योरेशन पर ये आपके पास स्पर्म जो बनेगा, इसके 3 मेन पार्ट्स रहेंगे। द मिडिल पीस, जिसमें सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैंने आपको बताया हेल्प करेंगे मोटिलिटी में। हेड पार्ट, जिसके आगे प्रेजेंट रहेगा एक्रोजोम, जो कि ब्रेक करने में हेल्प करेगा जोना पैलोसिडा को, और बीच में प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस,
जो कि जब जोना पाइलोसिडा ब्रेक डाउन होगी तो न्यूक्लियस जो होगा स्पर्म का दैट विल मूव इनटू द ओवम, जहां पर फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, एंड दिस टेल विच प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द स्पर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वन कोइटस बाय द मेल। सो यही आपने अभी स्टडी किया, एक्रोसोम, दिस इज द हेड पार्ट, now it has the nucleus containing the chromosome, this is the middle piece, and now at the bottom there is this what we call as tail. Now head मैंने आपको बताया हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, एक कैप लाइक एक्रोसोम प्रेजेंट है, एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यालुरोनिडेज, जो कि यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस से ड्यूरिंग डिवीजन ये इसका फॉर्मेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया ये हेल्प करता है। नेक जो है बीच में कनेक्ट करती है हेड और मिडिल पीस को, मिडिल पीस जिसमें कि प्रेजेंट रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, टेल जो है वो स्लेंडर लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर है, और ये वाइब्रेट करता है ताकि मूवमेंट कॉज हो सके। 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग वन इजैक्यूलेशन, जिनमें से 60% should have normal shape. So if we call a male fertile, that means he has more than 60% males, the sperms which are being produced by that male have a normal shape, size, and have almost 40% motility. Now, next we start with the process of oogenesis. In the next video, we'll be talking about oogenesis.